Respected Vaidya Ashutosh Nanal sir. Sir is the fourth generation of Nanal dynasty, son of late Bhrutray Ratna Vaidya Vilas Nanal sir. He started to receive his basic training under the guidance of his father when he was in 10th grade. The basic of manufacturing medicine, bhatti, bhasmikaran, and other simple to complex procedure were mastered by him at the very early age. He completed his BMS from Bharatiya Vidyapit College, Pune, followed by post-graduation in specialization in diabetes and its complication. He has worked extensively on Jasad Bhasma and its role in management of diabetic neuropathy. He is actively practicing since 2005 as an independent Ayurvedic physician. He is working as a chief physician for different charitable OPDs run by Nanal Foundation in different areas of cities. He worked with many prestigious organizations as a consulting doctor. Vaidya Ashutosh Nanal sir, along with his wife Vaidya Esha Nanal ma'am, are currently looking after Nanal Ayurvedic Chikitsalaya and Nanal Research Foundation initiative, which has been started by Vaidya Vilas Nanal sir. Now, I would like to request Vaidya Ashutosh Nanal sir to please start his session. Today I shall be discussing a conceptual study of Rasa Sankalpana. Rasa Sankalpana is the most basic concept which we can actually approach, practically implement in most of the clinical challenges or clinical everyday clinical usages that we face. So that's why I have selected this topic particularly. Charakacharya in Atrayabhadrakapya elaborately explains each rasa to the depths and to the core. Understanding of these concepts will give us clinical better insights. So I shall start with the presentation dedicated to my memory of my revered father from whom I have inherited my thought process, my thinking and everything. Let's start. Now, Swasthasya Swastharakshanam is something which we know, Aturasya Vyadhi Parimoksha is something which we know. Then why still I am recalling these concepts? So, even for prevention of diseases, what you need to go ahead is with dravyas. There are Swastha Hitakara Dravya, Urjaskar Dravya. So, in all of them can be related with the concept of rasa. So, Dravya is a pradhan entity and Dravya is something which we need to link with most of the other similar and parallel concepts. Chikitsa is something what is basically can be defined as Dhatu Samya Kriya Chokta. So, any such act which can establish the lost balance of dosha, dhatu and malas can be termed as chikitsa. Now, speaking about rasas in Agreya, Charaka says that Ekarasa Bhyaso Daurbalya Karanam Agreha. Consumption of any particular taste, this sutra can be extended a little bit like what we say eka rasa abhyaso. So similarly rasa wise, if you are consuming any particular combination in excess quantity on a repetitive basis, that is also going to yield a similar impact. So from all these we can understand for swasthasya swastharakshanam dravya becomes of utmost priority. Even for aturasya vyadhi parimoksha, chikitsa, what we do, chikitsa is of different types. It could be dravyarup chikitsa, adravyarup chikitsa, or it could be some adhidevik chikitsa also. But final culmination or the results are visible only on the dravyabhut sharir or any other dravya in case of we are thinking of different sanskaras. So dravya is pradhan, dravya we need to attribute and understand properly. Now, definition of dravya. So, yatrashritaha karma gunaha karanam samavayi yattad dravyam. We just need to focus one word and recall one word here, that samavayi yattad dravyam. So, wherever the sambandha is samavay between all of them, the intricate bonding which Samhitakaras have tried to establish and explain. So, this samavayi shabda explains with that. Next, we says gunaya ukta dravyeshu sharireshu apite tatha sthana vruddhi kshayas tasmat dehinam dravya hetuka. So this clearly says dravya hetuka. Iti dravya, existence of dravya, so far we will not
give cognizance to prominence or dominance of dravya, nothing further or nothing exists after that. So dravya pradhanya is established. So to understand rasa, rasa, virya, vipaka or any of the further theories, we have to attribute dravya first. Now, why rasa sankalpana? Amongst all of them, rasa, virya, vipak theories, why am I elaborating rasa sankalpana? Rasa being the most basic. अगर कहीं पे भी हम देखते हैं कि आम कैसा है या नींबू देखा तो मुंह में आपके पहले पानी आ जाता है, वाटरिंग रहता है माउथ में. सो दिस इज द ये बहुत सिंपलेस्ट और बेसिक परिभाषा है जो कोई भी समझ सकता है. इसमें बहुत ज़्यादा विचार करने की या आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी. जिह्वा से गम्य ये सबसे आसान भाव है जो सबसे आसानी से परीक्षण हो सकता है. नए द्रव्यों का भी परीक्षण करना है तो नए द्रव्यों का परीक्षण करने में भी हमें रस से ही हम शुरुआत करते हैं कि परीक्षण होता है, रूप रस गंध से शुरुआत होता है, पर रस से जो चीज़ें गम्य होती है उनका आगे का जो कल्मिनेशन है वो किस तरीके से होने वाला है, क्या है, ये चीज़ हम आसानी से समझ सकते हैं. इसीलिए रस संकल्पना का विचार हमें थोड़ा विस्तार में करना पड़ता है. नाउ बेसिक फैक्ट्स अबाउट रस अगर हम देखें तो तेषाम षण्णाम रसानाम योनि ही उदकम. इसमें कुछ वर्ड्स ध्यान देने लायक है जो हमें आगे रिकॉल करने हैं. यहाँ पे योनि ही एक शब्द इस्तेमाल किया है चरक ने कि रस का सिंथेसिस या रसों के महाभूतों के कॉम्बिनेशन हमें सबको याद रहते हैं कि मधुर और ये मिला के ये रस बनता है, अम्ल और मिला के ये रस बनता है. बट प्राइमोरियली हमें विचार करना पड़ता है कि अगर जल का अभाव है तो जल के अभाव में कोई भी रस की उत्पत्ति मुमकिन नहीं है. छेदन उपशमन ये मैं संहिता से सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा बैकग्राउंड आपको हो जाए इसलिए. छेदन उपशमन द्वे कर्मणि तयो मिश्री भवत साधारणम की छेदन उपशमन ये दो कर्म प्रायः सब रसों से संपादन होते हैं. इस पे निर्भर होता है कि आप किस तरीके से चिकित्सा में इनका प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके की भेषज कल्पना इसमें आप दे रहे हैं, उस हिसाब से छेदन कर्म संपादन होगा, उपशमन कर्म संपादन होगा, या किस तरीके से दो या अन्योन्य भाव से रसों का संयोग आप कर रहे हैं उसके ऊपर ये कर्म कौन सा संपादन होगा ये निर्भर होता है. हित और अहित ये प्रभाव है, इनके लिए भी यही नियम लागू होता है कि किसी को एक रस हित हो सकता है तो दूसरे व्यक्ति को वही रस अहित हो सकता है. तो ये तरतम भाव से जानना हमारे लिए ज़्यादा उचित होता है. पंचमहाभूत विकारास्तु आश्रय, इसके ऊपर हम आगे स्लाइड्स में आने वाले हैं. प्रकृति विकृति विचार देश कालवशः कि रसों की उत्पत्ति जो है अगर हम देखने जाए कि आज आप आम देखते हो, नींबू देखते हो, इमली देखते हो, लवण देखते हो, तो ये रसों का प्राधान्य या ये रस इन पदार्थों में मौजूद है. पर हम थोड़ा अगर शुरुआत में पहले जाएंगे कि रसों का सिंथेसिस की सृष्टि में अगर अम्ल रस की उत्पत्ति होनी है तो ही उस पर्टिकुलर काल में या उस विशिष्ट ऋतु में जो फल उत्पन्न होंगे उसमें अम्ल रस का स्वाभाविक रूप से निर्माण होना ये संभव होगा. तो सृष्टि के मतलब देश के हिसाब से, काल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो चीजें उस काल में अतिशय समर्पक स्वरूप से निर्माण होती है. आजकल ये हमें देखने के लिए मिलता है कि आम का फल आपको साल भर मिलता है या कोई भी फल है, कोल्ड स्टोरेज है, प्रिजर्वेशन है या नहीं, तो देयर आर टेक्निकलिटीज जिसमें से ब्रीडिंग होके साल भर आपको फल मिलते हैं. बट दैट शुड नॉट बी अ ऑप्टिमल चॉइस. अगर हम चिकित्सा के हिसाब से देखें जहाँ पे फलरूप द्रव्य आपको लेके आगे भेषज निर्माण करना है तो प्रेफरेबली उस ऋतु में जो फल प्राप्त होती है उसी का विचार हमें करके उसी का ग्रहण करना चाहिए. आगे हम देखते हैं स्वादु अस्वादु भक्ति ही और तेषु आश्रयेषु द्रव्य संज्ञकेषु गुणाः. यहाँ पे द्रव्य का डोमिनेंस उन्होंने फिर से बताया कि द्रव्य के सिवा ये चीज अस्तित्व में नहीं आ सकती है. अब यहाँ पे अगर हम चार्ट देखें तो ये सिंपल है कि महाभूतों का किस तरीके से निर्माण है या किस तरीके से महाभूत साथ में आते हैं. तो ये थोड़ा चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि स खलु आप्य रसः, तो पूरे सब रसों के निर्मिति में आप महाभूत ये कोर में है
उसके ऊपर आचार्य सुश्रुत ने एक लाइन बताई है कि शेष भूत संसर्गात विदग्धः षोडा विभज्यन्ते। तो ये विदग्ध शब्द जो है ये हमें जानकारी देता है कि किस तरीके से ये रसों का निर्माण आपस में होके कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से या मधुर, जैसे अगर देखें हम पृथ्वी और आप से मधुर हो रहा है, आप और अग्नि महाभूत से आगे का लवण रस हो रहा है, तो इनमें क्या न्याय या किस तरीके से ये रस उत्पन्न होते हैं, किस तरीके से इनका संबंध या आपस में इंटीग्रेशन होता है, ये विदग्ध शब्द से हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। हम अगली स्लाइड में देखेंगे, ये रिकॉल करने के लिए सिर्फ दिया है, ध्यान में आ जाएगा आपको। सो वही सूत्र जो पहले बोला था कि रस शेष भूत संसर्गात, रस इति रसों की जो उत्पत्ति है शेष भूत संसर्गात में आपको बेसिक ये ग्रहण करना है कि आप महाभूत का प्राधान्य या आप महाभूत की मौजूदगी वहां पे होनी चाहिए। आप महाभूत के साथ में जब पृथ्वी महाभूत का वहां पे संयोग होने वाला है तो मधुर रस होगा। अम्ल के लिए वैसे ही पृथ्वी और अग्नि होंगे, लवण रस के लिए आप और अग्नि होंगे, कटु के लिए वायु और अग्नि है, तिक्त के लिए वायु और आकाश है, और कषाय के लिए वायु और पृथ्वी है। अब बचते हैं आपके तीन, पृथ्वी और आकाश। अगर पीछे की स्लाइड में हम देखें कॉम्बिनेशन, तो ये तीन जगह है, तीन पॉकेट्स है जहां पे कोई भी दो महाभूतों का संयोग यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो पृथ्वी आकाश, आप वायु, आप और आकाश, तो इसीलिए यहाँ पे 6 रसों की उत्पत्ति वहां पे बताई है। अब विदग्ध इस संज्ञा से क्या समझ में आएगा, तो जब दो महाभूत यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने 3 यहाँ पे लाल रंग में शब्द बताए हैं, परस्पर संसर्गात, परस्पर अनुग्रहात और परस्पर अनुप्रवेशात। तो संसर्ग, अनुग्रह और अनुप्रवेश, ये 3 चीजें हैं जो यहाँ पे आपको समझने लायक है, जिनसे ये महाभूतों का व्यापार समझ में आ जाता है तो रसों की उत्पत्ति सुकर हो जाती है। आगे हम जाएंगे अगली साइड में। जो मैं विचार आपको बता रहा था कि रसों की उत्पत्ति में देश का विचार, काल का विचार, ऋतु का विचार, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। शिशिर ऋतु में वायु और आकाश का प्राधान्य रहने से अधिकतर तिक्त रस की उत्पत्ति होती है। वसंत में वायु पृथ्वी है, कषाय रस की उत्पत्ति है। ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे अग्नि और वायु इन डोमिनेंस है, कटु रस की उत्पत्ति है। वर्षा ऋतु में अम्ल रस है, अग्नि पृथ्वी होके अम्ल रस है, शरद है। तो इसी तरह से डायरनल वेरिएशन में अगर हम देखेंगे तो ये साल भर में जो ऋतु चक्र चलता है उस हिसाब से ये चीज़ें मिलती है। आज सुबह ही मेरी आशीष सर से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि नीम की जो वेरिएंट इंडिजिनस स्पीसीज है, कड़वा नीम हम जिसको बोलते हैं, नींब पत्र, तो इसके कुछ स्पीसीज जो इन्होंने अमेरिका में ले जाके प्लांट किए थे अराउंड 40-50 ईयर्स बैक। सो एजाडिरेक्टिन जो कंटेंट निकालते हैं, तो एजाडिरेक्टिन हैज़ 40 डिफरेंट ऑड कंपाउंड्स। इसमें से जो प्रिंसिपल कंपाउंड है, कंपाउंड इज सेम, बट इंडिजिनस वैरायटी जो इंडिया का नीम है और जो अमेरिका में वही प्लांट गया है, ये दोनों के कंपाउंड में देयर इज अ डिफरेंशिएशन। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जो सुश्रुत ने वहाँ पे कहा है कि देश के विचार से कटु रस की उत्पत्ति में भेद आता है, ऋतु के हिसाब से भेद आता है, तो जो देश अगर दो अलग अलग है, यही चीज़ चंदन के बारे में भी आप देखते हो। इंडियन सैंडलवुड जो है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, उसके गुण भी वैसे ही, उसमें शीत गुण, कषाय रस, ये जो होता है ये सबसे उत्तम मात्रा में और उत्तम प्रति के मिलते हैं। वही आपको ऑस्ट्रेलिया या बाहर जो प्लांटेशन होता है उसमें से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिलती नहीं है। तो जब रसों का विचार आप करते हो तो वो चीज़, कोई चीज़ कहाँ से ग्रहण करनी चाहिए, कि वत्सना भी ग्रहण करनी है तो वत्सना भी कौन से देश में या कौन से प्रांत में उसका कल्टीवेशन हुआ है, दैट मैटर्स अ लॉट। सो ओरिजिन ऑफ योर सैंपल के लिए रसों का विचार करने के लिए ये ऋतु और देश का जो विचार है, ये इंटीग्रेशन थोड़ा आपको करना उचित होता है। पर्टिकुलरली जब रिसर्च के बारे में आप कोई ड्रग चूज करते हो कि व्हेन यू वांट अ अल्टीमेट पीस की जिसका ऑप्टिमल फंक्शनैलिटी आपको मिले, तब ये चीज़ें आपको थोड़ी सोच विचार करके इम्प्लीमेंट करनी होती है। अभी हम फिर बेसिक थ्योरी पे पहले आने वाले हैं। परस्पर संसर्गात, ये परस्पर क्या है कि दो लोग या दो एंटिटीज जो आमने सामने आती है, तो ये उनके इंटीग्रेशन या उनके इंटर रिलेशन के बारे में बात चल रही है। तो हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ग्रहण करनी है? परस्पर संसर्गात, परस्पर अनुग्रहात, परस्पर अनुप्रवेशात।
दूसरी चीज क्या बताइए आगे, सर्वेषु सर्वेषाम सानिध्यम अस्ति उत्कर्षापकर्षात् तु ग्रहणम, कि दो चीजें साथ में आने वाली है। दो लोग, जैसे मैं अगर एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि दो भिन्न स्वभाव के व्यक्ति बगल में बैठे हैं, तो उनमें जो इंटरेक्शन होने वाला है, एक दूसरे को फेवर कर सकता है या दूसरा पहले को फेवर कर सकता है, दूसरा संसर्ग, दोनों मिलके कोई और चीज सोच सकते हैं या कोई खिचड़ी भी पका सकते हैं, जिससे तीसरा कोई टोटली आउटकम आपको मिल सकता है। परस्पर अनुप्रवेशात, कि इनके दोनों के गुण समान है या जो विपरीत है, इनमें इंटरेक्शन होके समान समान गुण मिलके नया कोई द्रव्य जो है अलग तरीके से जिसकी उत्पत्ति हो सकती है। तो यहाँ पे समझना कैसे है कि सर्वेषु सर्वेषाम सानिध्यम, कि सब में सब चीज रहती है। उत्कर्षापकर्षात् तु ग्रहणम, तो जिन दो गुणों का या जो दो समान गुण है या जिनका उत्कर्ष होगा, जो मिलके आगे बढ़ने वाले हैं, आने वाले हैं, उनका उत्कर्ष ग्रहण करना चाहिए। जो विपरीत है उनका अपकर्ष होने वाला है। और इनके सब में भी हम देखते हैं कि विरुद्ध गुण संयोगे भूयसा अल्पम ही जीयते, कि ये परस्पर अनुग्रह अनुप्रवेश ये सब होने के बाद फाइनल इंटीग्रेशन होके जब द्रव्य का संधान नए तरीके से होने वाला है, तो वो संधान होते वक्त ये सब प्रोसेसर्स जो हमने यहाँ पे मेंशन किए, ये होने के बाद जो शेष गुण या जो शेष रस वहाँ पे रहने वाले हैं, कि हम देखते हैं कि उदाहरण के तौर पे कि किसी खाने में अगर आपका तीखा ज़्यादा हो गया तो आप उसमें थोड़ा नींबू गाड़ते हो, जिससे कि तीखे का स्वाद कम हो जाता है। तीखा फिजिकली कम नहीं होता है, पर वो इट इज़ ट्राइंग टू मास्क द टेस्ट ऑफ दैट, जो भी चिली वगैरह आपने डाला है कि तीखा हुआ है, तो उसका तीखापन वो कम कर देता है। उसमें से शक्कर या उसमें से जो तीखापन है वो कम नहीं होता है, वी डोंट फील इट। तो ये दोनों का इंटरेक्शन होने के बाद जो फाइनली नया द्रव्य आता है, उसके लिए निर्माण सिद्धांत तो होता है कि विरुद्ध गुण संयोगे भूयसा अल्पम ही जीयते। बीच में एक लाइन हमने देखी कि विदग्धः, तो विदग्धः से अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला, विदग्धः से षोडा विभज्यते, कि विदग्ध से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए या क्या ग्रहण हम कर सकते हैं। कि दो महाभूतों का संपर्क होने के बाद पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये महाभूतों के हर एक के गुण अलग अलग है। ये जब आपस में मिलते हैं तो जहाँ पे अग्नि का संपर्क आने वाला है, अग्नि अपने कुछ विशिष्ट गुणों से, जैसे अग्नि और पृथ्वी का संपर्क साथ में आने वाला है तो अग्नि पृथ्वी का खरत्व बढ़ाएगा। द्रवत्व है अग्नि के, जल के संबंध में द्रवत्व है, अग्नि का संबंध आता है तो वो कहीं पे द्रव गुण को घटाने वाला है और बाकी गुणों का उत्कर्ष वहाँ पे करने वाला है। अग्नि वायु के बारे में, वायु को वो विरलता देगा, कि वायु डेंसिटी हम जिसको बोलते हैं कि हॉट एयर की डेंसिटी अलग होती है और डेंसिटी ऑफ एयर या ठंडी हवा की डेंसिटी अलग होती है। सो ये अग्नि का संपर्क जब वायु के साथ आता है तो इट ऑल टुगेदर चेंजेस द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर महाभूत। आकाश के बारे में अगर कहा जाए तो आकाश विभु है, आकाश के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया या क्रिया आपको दिखने को अलग से नहीं मिलती है। तो विदग्धः मतलब क्या, कि उसमें अंगभूत जो बाकी आप महाभूत की जो स्टेज which is going to be controlled in particular formation of that रस, ये आपको विदग्ध शब्द से बताइए, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी अभी हम यहाँ पे देखें कि रस सिंथेसिस में सुश्रुत में थोड़ा अलग तरीके से दिखता है कि सौम्याश्च खलु आपो अंतरिक्ष प्रभावा प्रकृति शीत लघवश्च अव्यक्त रसः, कि ये एक ऐसी फेज में स्थिति रहती है कि जहाँ पे अव्यक्त रसः, कि इनकी व्यक्ति अभिव्यक्ति हुई नहीं है। तास्तु अंतरिक्ष अदृश्यमाना भ्रष्टाश्च पंच महाभूत गुण समन्विता, कि पंच महाभूत गुणों से भ्रष्टाश्च इति, इनका जो हमने पहले कुछ 5-6 जो लॉजिकल प्रोसीजर्स देखे, तो इनके समयोग से भ्रष्टाश्च पंच महाभूत गुण समन्विता जंगम स्थावराणाम भूतानाम मूर्ति ही अभिप्रीणयन्ति तासु मूर्तिषु षड्भिः मूर्छन्ति रसः। मूर्छन्ति क्या बोला है उन्होंने, कि दो चीजें जब साथ में आते हैं तो उसको हम मूर्छना कहते हैं, और उस मूर्छना से आने वाला जो है वो नया द्रव्य वहां पे निर्माण होता है। सो इट्स अ सेट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट आर्टिकल्स विच इज गेटिंग मिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर रेशो एंड दैट इज यील्डिंग यू अ पर्टिकुलर रस। तो अम्ल रस का मूल संधान होने के बाद इमली का अम्लत्व ये अलग है, नींबू का अम्लत्व अलग है, चिंची इसका अम्बष्टा का जो अम्लत्व है वो अलग है।
तो वो तरतम भाव से भेद करके फिर उसका चिकित्सा में हम प्रयोग करते हैं। दाडिम का जो है वो अलग आता है। तो उसके जो एक्सेप्शंस है, जैसे आम्ल की है, आम्ल की क्षीर मित्र बोला है, पर बाकी आम्ल रस क्षीर के साथ विरोध बोला गया है। तो ये एक्सेप्शन जो बताए हैं इनका विचार हमें अलग से करना पड़ता है। बाकी सामान्यतः से रसों के ज्ञान से हम द्रव्य का विचार करके या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए रस का विचार हम थोड़ा विस्तार में यहाँ पे ले रहे हैं। जो मैंने पहले बोला कि संसर्गात से हम ग्रहण कर सकते हैं कि कंबाइनिंग विथ ईच अदर। दूसरा अनुग्रहात, अ यूनियन विच इज फेवरिंग टू कंबाइनिंग एंटिटीज। अनुप्रवेशात, a union which where in the two entities are merging with to emerge the entirely new द्रव्य। जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि विरुद्ध गुण संयोगी, वही चीज है, थोड़ा यहाँ पे इलेबोरेट किया था। तो ये इसका विचार हमें कहाँ करना पड़ता है कि अभी भेषज निर्मित जब हम करते हैं, दो चीजें हैं कि आहारीय द्रव्यों में विरुद्ध आहार है या नए जो चीजें आप आजकल पिज्जा आता है, टोमेटो इनकॉर्पोरेट हुआ है, लोग खाते हैं, तो ये सब चीजों का कस्टर्ड है या एन नंबर ऑफ थिंग्स जो रोज के खाने में हमारे इनकॉर्पोरेट हुई है। तो वैद्य करके अगर इनका विचार आपको करके इंटीग्रेट करना है तो उनमें जो द्रव्य जिस सीक्वेंस से मिक्स हुए हैं या आते हैं या उनकी जिस तरीके की रेसिपीज पाककृति बनती है, तो ये सब का विचार अगर एक आप शीट करोगे कि द्रव्य में घटक क्या क्या है, प्रोसेस उसमें क्या आता है, काला संस्कार कौन सा आता है, अग्नि संस्कार किस तरीके से आता है, तो इसके बाद में वो नया जो भी पदार्थ है उसके गुणों का अनुमान करना हमें मुमकिन हो सकता है। तो इसलिए ये तीनों का इंटर रिलेशन हमने एस्टिमेट किया है बेसिक। अभी अगर हम परस्पर संसर्गात अनुग्रह का प्रैक्टिकल देखें कि स खलु आप्यो रसः, आकाश का शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श और शब्द ये दोनों इंटीग्रेट हुए। तो ये जो आकाश से लेके उल्टी हायरार्की है कि जब सृष्टि में महाभूतों की उत्पत्ति होती है तो पृथ्वी महाभूत पहले नहीं आता है, पहले अस्तित्व में आता है जो आपका रहता है आकाश महाभूत है। आकाश महाभूत में भी अगर आप देखोगे उसके बाद में वायु की उत्पत्ति होगी, वायु से तेज की उत्पत्ति होगी, तेज से आप की उत्पत्ति होने वाली है और उसकी में सबसे ज्यादा आखिरी में पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है। परस्पर संसर्गात एकोत्तर परिवृद्धा, कि इनके संसर्ग होने के बाद हर स्टेज में एक एक कोई गुण उसमें उसका आदान हो रहा है और वो गुण वहां पे स्थिर हो रहा है या उस गुण की पहले गुणों के सेट के साथ वहां पे मूर्छना हो रही है। ये हमने यहाँ पे ग्रहण किया है। अभी रसों के सभी रसों के बारे में अगर देखा जाए कि तत्र अग्नि मारुतात्मक रसः प्रायण ऊर्ध्वभाजः, कि अग्नि और वायु के डोमिनेंस से जो रस निर्माण हो रहे हैं ये ऊर्ध्वभाजः। लाघवात् उपप्लवनाच्च वायोः ऊर्ध्वं ज्वलनाच्च वह्नेः, सलिल पृथ्वी आत्मकत्वात् तो प्रायण ऊर्ध्वभाजः, पृथिव्या गुरुत्वात् निम्नगत्वाच्च। सो हर एक महाभूत का जो गुण हम ग्रहण करते हैं, गुरुत्व है, लघुत्व है, उनके हिसाब से यही गुण आपको वो रसों में अधिकतम मात्रा में या प्रकर्ष उनका जो है वो वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है। सौम्या खलु आपो अंतरिक्ष प्रभाव प्रकृति शीत लघवश्च अव्यक्त रसः। सो ये हमने सूत्र पहले देखा है, रिपीट हुआ है। अभी रसों का बैकग्राउंड थोड़ा लेने के बाद यहाँ पे देखा है हमने कि अभी हम थोड़ा मधुर रस का विचार, एक एक जो रस बताए गए हैं इन रसों का मैं थोड़ा विचार अभी आपके सामने रखने वाला हूँ कि कोई किस तरीके से हमें रस समझना चाहिए, किस तरीके से संविधाकारों ने उसका विश्लेषण किया है। मधुर रस से हम शुरुआत करेंगे। मधुर रस का सामान्य अगर हम एस्पेक्ट देखेंगे तो परितोषम उत्पादयति, कुछ भी मीठी चीज का, ये ट्रेंड थोड़ा आजकल चेंज हो रहा है। ज्यादातर लोग अभी शक्कर खाना प्रिफर नहीं करते हैं या फिर शक्कर खाने से थोड़ा लोग परहेज रखने लगे, पर सामान्यतः देखोगे तो मीठी चीज कोई भी आएगी तो उससे वो एक परितोष उत्पन्न होना, मतलब उसका शारीर और मानस भाव पे जो कर्म है ये सबसे पहले इधर हमें उन्होंने बताया। अगला प्रहलादयति तर्पयति जीवयति मुखलेपम जनयति। अगर हायरार्की में देखे जाए तो परितोष उत्पन्न होने से बाधा मात्रा और समय दोनों के हिसाब से देखने जाएंगे तो वो मुखलेपम जनयति, कि वो मधुरतम भाव से बढ़ते जाता है तो उपलेप तक निर्माण करता है। उसके बाद में श्लेष्माणम वर्धयति। अष्टांग संग्रहकार में भी यही कुछ लक्षण यहाँ पे बताए हैं।
आगे क्या देखते हैं हम। अभी ये सूत्र के ऊपर हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। मेदोस्थि मज्जा की शरीर सात्म्या स एवं मधुर रसा की मधुर शरीर सात्म्या आजन में सात्म्य की पहली चीज हम जो पैदा होने के बाद शुरुआत करते हैं मातृस्तन्य से हम लेते हैं, तो मातृस्तन्य क्षीर ये मधुर रस है, शरीर साथ में होता है। तो उसके बाद में एक एक उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि रसवर्धन, रक्तवर्धन, सप्तधातु वर्धन है, मधुर रस बेसिकली वहां पे बोला गया है। अभी एक एक चीज लिखते हैं। मेदोस्थि मज्ज ओज शुक्राभिवर्धन, यहाँ पे संज्ञाओं का थोड़ा विचार हम करेंगे तो अभिवर्धन ये शब्द यहाँ पे आया है। वर्धन शब्द हम सिर्फ ग्रहण नहीं करते हैं। अभिवर्धन से मेरे हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा इट्स एक्सेलरेटेड डिग्री ऑफ वर्धन शब्द की एक्सक्लूसिविटी ऑफ एनी कर्म जब किसी कहीं पे बताना होता है तब अभिवर्धन ये शब्द का ग्रहण हमें करना होता है। सो इसमें से हमें क्या समझना है कि जहाँ पे सप्तधातु क्षीण अवस्था है, धातुओं का क्षय है या क्षीयमान धातु है, तो वहां पे कुछ न कुछ द्रव्य जो मधुर रस का हो, मधुर रस मधुर विपाक हो तो और भी बढ़िया है। क्योंकि जो धातु क्षय वाले रुग्ण आते हैं जिनमें देयर इज अ प्रोग्रेसिव वेट लॉस रहता है, उपचय की हानि रहती है, तो ऐसे लोगों में क्लिनिकली जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि हम लोग इन पेशेंट में रसाला एडवोकेट करते हैं। रसाला मतलब श्रीखंड, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि अदरक सिद्ध रसाला की दधी जब आप जमाते हो तो दधी में थोड़ा अदरक का छोटा पीस डालना है, उस दधी से रसाला निर्माण करनी है। और श्रीखंड बनाते वक्त जो चक्का बनता है उसमें केसर, दालचीनी वगैरह ये जो है मसाले पड़ के इसका श्रीखंड बनाते हैं। प्रयोजन यहाँ पे क्या होता है कि ये श्रीखंड एक बार में नहीं खाना है, हफ्ते भर का पेशेंट श्रीखंड बना के रख सकता है। और ऑन अ डेली बेसिस जैसे आप अचार खाते हो वैसे रुग्ण को आपको कहना है कि भाई रोज इतना एक चम्मच होगा, 2 चम्मच होगा, ये रसाला जो है ये पूरे खाने में उनकी थोड़ी 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 करके उनको खाना है। इसका परिणाम क्या होता है, जब कोई भी चीज हम सान्न या अन्न के साथ में देते हैं तो एक उदाहरण मैं सिंपल देता हूँ कि गन्ने का रस निकालते वक्त हमने देखा है कि जब तक गन्ने का रस, सिर्फ गन्ने का रस हम गन्ना लगाते हैं वहां पे, उस रस में कोई भी और स्वाद नहीं होता है। आप उसमें हल्का सा अदरक का टुकड़ा लगा दो, वो पूरे गन्ने के रस में आपको अदरक का स्वाद प्रचुर प्रमाण में मिलेगा। अदरक बढ़ाते जाओगे तो इक्षु रस के, वो गन्ने के रस के गुण विपर्य होना शुरुआत हो जाएगा। तो जब रोज रुग्ण आहार कर रहा है, जिनको प्रोग्रेसिवली आपको धातुओं का ग्रहण करना है और उत्तरोत्तर धातु जहाँ पे शुक्र की विकृति है, सेमिनल प्रोफाइल्स में प्रॉब्लम आते हैं, तो वहां पे जो आपको देना है वहां पे एक दिन में आप उनको वाजीकरण या शुक्रल या वृक्ष द्रव्य देके काम नहीं होता है। पर वहां पे अगर आप मधुर रस का विचार करोगे, जैसे मैंने रसाला बोला वैसे पेठा भी हो सकता है, गुलकंद भी हो सकता है, तो इन चीजों का निरंतर सेवन हर आहार में परिणमन होने के बाद व्यान वायु के साथ जो आहार रस निकलने वाला है, दैट इज वो एसेंशियली इट विल इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्वीट सब्सटेंस विच यू आर प्रिस्क्राइबिंग। इससे होने वाला है क्या है कि ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आप एक पर्टिकुलर तरीके का आहार रस रुग्ण के शरीर में तैयार करते हो, डिस्पाइट ऑफ वो उसमें फिर अचार खा रहा है, बाकी चीजें खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, बट पूरे अन्न में क्या गया है, तो मधुर रस शुरुआत से अंत तक और आहार के अंत में बचा हुआ थोड़ा पोर्शन गया है। सो इसमें आहार रस जो पूरा निर्माण हो रहा है ये मधुर रस के गुणों से और मधुर रस के कर्म आगे ये संपादन करने वाला है। यही आहार रस आपके पूरे शरीर में सप्त धातुओं को जाने वाला है और अपना परिणाम वहां पे दिखाने वाला है। इस तरीके से हमने देखा है कि जो लोगों में उपचय नहीं रहता है या जिनको सप्तधातुअग्नि वैगुण्य रहता है, मांद्य रहता है, तो इनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और विदाउट यूजिंग एनी अपरेंट मेडिसिन, मतलब वहां पे आप अश्वगंधा या विदारी गंधा यूज करोगे तो वो शायद उसको विदारी गंध को पाचन करने के लिए अग्नि का स्टेटस क्या है इसका आपको विचार करना पड़ेगा। पर इस तरीके से अगर आप मधुर रस का प्रयोग करोगे आहार में तो इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता है। मात्रा वही चीज है कि किसी रुग्ण को आप बोलोगे भाई 2 चम्मच खाओ, किसी को बोलोगे 4 चम्मच खाओ। तो ये एक तरीका जो है डेली बेसिस में प्रैक्टिस में मैं मेरे यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। यही चीज आपकी अम्ल पित्त के रुग्ण में भी बहुत काम आती है। अम्ल पित्त के रुग्ण में अगर आप देखोगे
तो चिरकारी अम्ल पित्त में जहाँ 7, 8, 10 साल 15 साल से अम्ल पित्त है, पेशेंट डाइजीन खा के या और कोई एंटासिड्स खा के ही इज लाइक कि काम चला रहा हूँ मैं, तो इनमें जब ये मधुर रस, जैसे मैंने गुलकंद बोला, या इसमें एक चीज हम और इंटीग्रेट हमारे यहाँ करते हैं कि आमलकी की मच्छी बनाते हैं। आमलकी को मक्खन जो रहता है, मक्खन पे भूंज के आमलकी की कृष्ण वर्ण की मच्छी बनाते हैं, जो मच्छी सान्न स्वरूप में पूरे आहार में देते हैं, जिससे क्या होता है कि, और इसमें शर्करा का भी प्रमाण रहता है, खड़ी शक्कर मिश्री जो बोलते हैं, ये भी है इसमें जाती है। तो इसमें जो अतिरिक्त द्रव मात्रा है उसका शोषण मच्छी से होता है, और जो शर्करा हम वहां पे देते हैं उससे धातुओं का जो नवनिर्माण होना है, वो अच्छे तरीके के धातुओं की उत्पत्ति होती है। कि पित्त के प्राधान्य से जो ह्रास या जो धातुनाश हुआ है वो अगर रिकवर करना है, तो मधुर छोड़ के कोई भी ऐसा रस नहीं है जो आपको नवीन धातु निर्मित करके देगा। अगर आप यहाँ पे मतलब मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय हायरार्की अगर हम देखेंगे, तो अम्ल रस के बाद में जहां तक जो भी रस है, इनमें से कोई भी रस धातुओं की नवीन निर्मित करने वाला नहीं है। ये एट्रीब्यूशन पूरा सिर्फ और सिर्फ आपको मधुर रस में मिलता है। इसीलिए सप्त धातु अभिवर्धन जो उन्होंने उनको कहा है कि ये एट्रीब्यूट, ये प्रॉपर्टीज आपको आगे किसी भी रस में नहीं मिलती है। अम्ल रस में मिलती है थोड़ी बहुत, वो भी स्पेसिफिक विद रक्त धातु के संबंध में रक्तम जनयति करके आता है कि रक्त धातु की निर्मित में अम्ल रस का रोल प्ले होता है। तो ये मधुर रस का जो सप्त धातु वर्धन रोल है, क्लिनिकली हम थोड़ा इस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके लाभ आपको मिलेंगे। अभी मैं आगे जाता हूँ। आयुष्य, आयुष्य इति क्या है? आजकल जो ट्रेंड आया है कि शुगर खाने से या शक्कर खाने से लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक्सेस शुगर नहीं खाना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी थेरीज चलती है। बट जो कंट्रोल्ड रेगुलेशन या एक विशिष्ट मात्रा में चीजें हमें इस्तेमाल करनी है, तो सप्तधातु वर्धन होने से जो जरा है, कि जरा में हम क्या देखते हैं कि जरा में धातुनाश शुरुआत होता है। अगर हम एक 60 साल की औसत उम्र पकड़ते हैं, तो एक 30 साल तक वी आर लाइक 20 साल तक वी आर इन अ ग्रोइंग फेज। 20 से 40 में समझता हूँ कि जो हमने 0 to 20 में जो भी खाना पीना उल्टा सुल्टा करके, परहेज करके, whatever body form we have earned, we spend that time in maintaining the status quo of that thing, and 40 के बाद में जो ये मेंटेनेंस अगर आपने अच्छा किया है, तो 60 तक आप अच्छे तरीके से रहते हो। नहीं हुआ है तो वो ह्रासमान अवस्था जो निर्माण होती है, जहाँ पे शरीर का नित्य स्वरूप से ह्रास होना शुरुआत होता है। सो दैट इज ए एजिंग प्रोसेस। तो मधुर रस का योग्य तरीके से अगर आप अंतर्भाव रखने वाले हैं, तो धातुओं का पोषण जो हमेशा रहने वाला है, वो दे आर गोइंग टू बी एट ऑप्टिमल, प्रोवाइडेड इसमें अग्नि का विचार जरूरी है कि मधुर बोला तो रोज चालू कर दिया, ऐसे नहीं, वो मधुर शरीर में एसिमिलेट होना चाहिए, दैट इज की क्राइटेरिया। इसीलिए उन्होंने आयुष्य ऐसे कहा है। अगला शब्द कहते हैं चरक की षडिंद्रिय प्रसादन। मधुर रस देख के या कोई भी अगर है, तो वहां पे इंद्रिय प्रसादन कर्म नहीं हुआ, ये संपादन नहीं होता है। अब इंद्रिय प्रसादन के बारे में जहां तक मैंने अनुभव किया है कि हम इंद्रिय संबद्ध विकार या मस्तिष्क संबद्ध विचार जहाँ पे भी कोई आते हैं, तो प्रायः यहाँ पे मैं केसर का इस्तेमाल करता हूँ पंचामृत के साथ। पंचामृत में भी अगर देखा जाए तो दूध, गाय का दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, इनका सम प्रमाण में इनकॉर्पोरेशन या सम प्रमाण में हम इसे निर्माण करते हैं। और पंचामृत के गुण जो है बहुत अलग तरीके से उन्होंने अपने यहाँ बताए हुए। इनके साथ जब केसर जैसी चीज आप देते हो, तो पंचामृत पूरा आपका मधुर रस के ही गुण, रस विपाक के हिसाब से पूरा आपको उसके परिणाम उसी तरीके से दिखाता है। इसमें जब आप केसर जैसी चीज का जोड़ देते हो, तो वो इंद्रियों पे और मस्तिष्कगत जो भी, मतलब ऊर्ध्वजत्रुगत में वहां पे कहूँ, तो यहाँ पे वो ज्यादा काम करता है। तो प्रयोग करते वक्त आप फिर उसे उदान काल देना है, व्यान काल देना है, ये व्याधि के हिसाब से आपको देना पड़ता है। पर षडिंद्रिय प्रसादन में अगर मधुर रस का विचार करना है, तो पंचामृत का विचार आप उसमें वहां पे कर सकते हो। बल वर्ण करा, ये संप्राप्ति सरल है कि अगर धातुओं का वर्धन होने वाला है, दे विल बी एट देयर ऑप्टिमल, तो बल और वर्ण की उत्पत्ति होने ही वाली है। बल वर्ण दो चीजें थोड़ी अलग है। वर्ण की उत्पत्ति मतलब अगर कोई जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन आपका हुआ है, उससे तो कॉम्प्लेक्शन आपका नहीं बढ़ेगा, बट बाकी व्याधि विशिष्ट
कि रसव स्रोतस रसदुष्टि रस प्रदोष में आपको जो वैवर्ण्य मिलता है तो उसमें काफी हद तक बाद की अवस्था में, शुरुआत में नहीं, एक बार पाचन जब आप कर लेते हो कि रसगत दोषों का पाचन हो गया है तो पाचन होने के पश्चात में रस का अभिवर्धन करने के लिए आपको मधुर रस का प्रयोग करना है और तब वो वैवर्ण्य या जो भी उसका वर्ण्य कर्म है वो आपको दिखेगा। जब तक सामावस्था है तब तक वहां पे मधुर रस का प्रयोग करना उचित नहीं है, इसीलिए बल वर्ण करा पित्त विष मारुतघ्न तृष्णा दाह प्रशमन त्वचा। अभी जो पहले वहां पे उन्होंने सूत्र में बोला है वही चीज आगे बता रहे कि पित्त विष मारुतघ्न, कि पित्तघ्न विषघ्न और मारुतघ्न। एक संहिताकार में चरक में जहां तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि हर जगह पे उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ जो शब्द या जो आखिरी का पर्याय है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। कि यहाँ पे घ्न बोला है तो घ्न शब्द से ना घ्न घ्नन्ति इति एक विशिष्ट अवस्था और विशिष्ट कर्म आप ग्रहण करते हो। अगर चरक संहिता में देखोगे योनि व्यापत्ति में वो वहां पे क्या बोलते हैं कि तत्र समीरणः शब्द देते हैं, वातव्याधि में प्रभंजना बोलते हैं, मातरिश्वा बोलते हैं। तो ये हर शब्द से ग्रंथकार को दोष की या उसके अवस्था की एक विशिष्ट गति, जो विशिष्ट कर्म संपादन होता है वो हमें कई बार ग्रहण करना होता है। संहिता पढ़ते वक्त हम ये चीज ओवरलुक कर देते हैं, हाँ मारुतघ्न मतलब हाँ वात को कम करता है। तो दीज थिंग्स आर नॉट सपोज टू बी टेकन दैट लाइटली जैसे नॉर्मली लिया जाता है। तो घ्न मतलब ये द्रव्यतः नाश, ये हमें यहाँ पे ग्रहण करना है। कुछ चीजें जो होती है कि शरीर से निर्मूलन करके उसको बाहर से निकाल देगा, निष्कासन कर देगा, उसका नाश नहीं करेगा। बट यहाँ पे घ्न शब्द आया है तो पित्तघ्न विषघ्न और मारुतघ्न। विषघ्न किसे एट्रीब्यूट होता है? विषघ्न एट्रीब्यूट होगा आपका स्वर्ण को होगा कि एक्यूट केस ऑफ पॉइजनिंग में वहां पे आप कोई मधुर कल्प दोगे तो उससे होगा नहीं, पर स्वर्ण जैसे कल्प जो मधुर मधुर ही है तो वो उत्तम गरघ्न है या उत्तम विषघ्न द्रव्य है कि जिनका प्रयोग हमें यहाँ पे ले सकते हैं। आगे कहते हैं तृष्णा दाह प्रशमन त्वचा। तृष्णा प्रशमन की रस धातु का अभिवर्धन वहां पे वो करने वाला है। तो उदक व स्रोतस और इनमें जो बाकी साथ में अगर पित्त वायु ये दोनों का वहां पे प्राधान्य अगर रहने वाला है तो जो रसक्षय होने वाला है उसका निराकरण मधुर रस के सेवन से होने वाला है। प्रशमन शब्द आया है यहाँ पे, त्वचा इति त्वचा पे कर्म करने वाला है। थोड़ा अगर आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से थोड़ा टच में हो तो काफी सारे प्रोडक्ट्स जो आप इस्तेमाल करते हो इसमें दे आर बेस्ड ऑन कॉर्न शुगर, दीज आर ग्लूकोसाइड कंपाउंड्स। तो ये कॉर्न की स्टार्च से डिराइव होते हैं आफ्टर सर्टन प्रोसीजर, और ये पूरा का पूरा कॉर्न सिरप या शुगर बेस रहते हैं विच यू आर यूजिंग इन योर एवरीडे कॉस्मेटिक रेजिमेंट्स। तो मधुर रस का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और यूज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफी सारी मात्रा होता है। गन्ने की शुगर नहीं जाती है, इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉर्न बेसिकली। तो दे आर ऑल ग्लूकोसाइड कंपाउंड्स। तो मधुर रस आपको वहां पे भी देखने के लिए मिलता है। केशः कि केश के बारे में देखा जाए तो केश करके आप उसे ले सकते हो। कंठ्यो बल्या प्रीणनो, प्रीणन अगेन रस धातु के विशेष में कर्म आता है तो रस की वृद्धि होने वाली है तो प्रीणन कर्म संपादन होगा, ये अपने आप होने वाला है। जीवन तर्पण, ये कर्म भी धातु वर्धन से ही संपादन हो रहे हैं और ये एक बार नहीं निरंतर सेवन से ये सब चीजें आपको दिखती है। मतलब ये यहाँ पे जो आगे हम एक शब्द में आने वाले हैं वहां पे मैं निरंतर ये शब्द पे क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ वो चीजें आपको समझ में आएंगी। इसके पहले स्लाइड में जो हमने देखा था कि जहाँ पे मुख उपलेपम जनयति, दिस वाज अ क्विक एक्शन ऑफ मधुर रस कि अक्षी, जैसे अम्ल रस में अक्षी ब्रुव निकोचन अगर लिया है वहां पे कि भाई आंखें इससे बंद हो जाती है तो दीज आर द क्विक एक्शंस। और चरक ने जो यहाँ पे बताया दीज आर लॉन्ग टर्म एक्शंस। तो ये दोनों सेपरेटली हमें यहाँ पे विचार करना पड़ता है। सो जीवन स्तर्पणो ब्रूहण स्थैर्य करहा, कि स्थैर्य धातुओं को स्थैर्य एक विशिष्ट तरीके से देने वाला है कि धातुओं की उत्पत्ति होने के बाद अगर सम्यक स्वरूप सम्यक मात्रा में धातु शरीर में स्थिर होती है कि जिनमें चयापचय प्रक्रिया है, नवनिर्मित ह्रास, ये सब कंट्रोल तरीके से होने वाला है तो स्थिरता वहां पे आने वाली है। शीत क्षण संधान करो, मधुर रस का एक थोड़ा अलग तरीके से एप्लीकेशन मैंने देखा था।
मैं छोटा था काफ़ी, मतलब 7-8 साल की उम्र होगी मेरी, और पिताजी के एक पेशेंट थे, उनको बगंदर था नेक रीजन पे, एंड ही वाज अ हेवी डायबिटिक। सो काफ़ी लो ट्रॉपिकल इंजेक्टेबल्स ऑफ इंसुलिन और ये सब हो चुका था, बट जो भी एलोपैथिक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवोकेट करते हैं, तो ये सब में उनको रिजल्ट नहीं आ रहा था। ही ऑल्सो वॉज अ डॉक्टर हिमसेल्फ। तो बाद में मुझे याद है कि पिताजी ने उनको उस वक्त बोला था कि अच्छे ढेर सारे घी में और शक्कर डाल के बना हुआ सूजी का हलवा, जिसको शीरा बोलते हैं, सो ही स्टार्टेड हिम ऑन दैट। और इसके बाद में उनका व्रणारोपण जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होना शुरुआत हुआ। तो ये क्षतक्षीण संधान करो जो यहाँ पे बोलते हैं कि क्षतक्षीण ये अवस्था अलग है। तो क्षत मतलब थोड़ा मैंने ये एक्सट्रापोलेट करके यहाँ पे बताया कि इन डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो एट सर्टन स्टेजेस आई हैव विटनेस दिस थिंग माई सेल्फ, कि ये चीजें इस तरीके से दी जाती है। नहीं तो आजकल का ट्रेंड है कि जख्म कहीं पे भी हुआ है मीठा बंद कर दो। जो बेसिक कॉर्पस बिल्डिंग में एक चीज आप थोड़ा ध्यान में लीजिए कि मधुर रस को मैं बाकी सब रसों से अलग रख रहा हूँ, कि जो हमने छेदन और उपशमन वहां पे बोला, तो ये बाकी अन्य सब रस, अम्ल से आगे मधुर से आगे के सब रस है, ये सब रस किसी न किसी तरीके से शरीर में छेदन कर्म ही अधिकतर संपादन करते हैं। मधुर रस एक ही ऐसा है कि जो नवनिर्मित में या नए टिश्यू जनरेशन में या कोई भी आपको जहाँ पे नवीन निर्माण करना है, इट इज द ओनली रस विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो इसीलिए यहाँ पे क्षतक्षीण या संधान करो में उसका आया है। ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, जब आप थोड़ा बाकी अगर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय इसी फॉर्मेट में अगर थोड़ा सोचेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि मधुर रस इज द ओनली वन विच इज कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग। इट कैन एक्चुअली प्रोवाइड द कॉर्पस विच इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग एनीथिंग न्यू इन द बॉडी, क्योंकि पृथ्वी और आप ये दोनों का डोमिनेंस इसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। इसके ऊपर मैं थोड़ा आगे और आने वाला हूँ मधुर रस के बारे में। दाह मूर्छा संधान करो घ्राण मुख कंठ ओष्ठ जिह्वा प्रहलादनो। प्रहलादन उसका कर्म है, वो ये सब जगह पे व्यक्त हुआ हमें दिखता है। दाह मूर्छा प्रशमन क्वाइट सिंपल, उसमें कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। षटपद पिपीलिका नाम इष्टतमा इति पिपीलिका वगैरह उन्होंने बोला है। अभी हम गुणों के प्रोफाइल पे आते हैं। स्निग्ध, मधुर रस का अगर गुणों का प्रोफाइल मुझे विचार करना है, स्निग्ध शीत गुरुश्च, कि ये प्रधान गुण मधुर रस में हमें पाए जाते हैं, जो महाभूतों से रिजेंबल करते हैं उनके, और जो अभी तक हमने कर्म सब देखे हैं यहाँ पे, इनसे भी ये रिजेंबल करते हैं। तो मधुर, शीत और गुरु। मधुर मधुर उष्ण भी होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है, बट ये हम सामान्य के बारे में बात कर रहे हैं। विशेष द्रव्य है उनका विशेष तरीके से विचार करना होता है, क्योंकि उनमें काफी सारी चीजें और भी साथ में जुड़ जाती है, इसीलिए वो सामान्य से विशेष बन जाती है। स एवं गुणोपि एक एवं अत्यर्थ उपयुज्यमान स्थौल्य। सबसे पहले जो इन्होंने पार्ट लिया आगे की स्थौल्य, मार्दवम आलस्यम अतिस्वप्नम, कि स्थौल्य में अगर हम देखा जाए, स्थौल्य की जो टिपिकल चरक ने संप्राप्ति बताई है कि जहाँ पे वायु का पुनरागमन करके अग्नि संदुक्षण कर करके क्षुधा उत्पत्ति करके धातुओं का करके मेद बढ़ाता है, पर यहाँ पे स्थौल्य के लिए मैं देखूं तो अगला शब्द जो उन्होंने दिया है कि मार्दवम। तो मार्दवम से यहाँ पे जो मुझे अपेक्षित हो रहा है कि अगर उदाहरण के तौर पे देना है मुझे यहाँ पे, कि अगर कोई मैं एक मांसखंड लेता हूँ, कि मांसखंड मैंने खुला हवा में छोड़ दिया है, तो वायु और अग्नि से उसका जो स्वरूप होने वाला है वो कर्कश हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा, वो सूख जाएगा। यही चीज मैं अगर उसको सोख करता हूँ कि घी में रखता हूँ, तो उसकी समय जो है वो खराब होने का वो काफी थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, उसकी स्निग्धता बनी रहेगी, उसमें रुक्षता नहीं आने वाली है, एंड द प्रोसेस विल प्रोलॉन्ग। यही चीज अगर हम देखते हैं कि कई बार रेसिपीज में, फूड रेसिपीज में भी हम चीजें जो होती है वो हम वी सोक इन शुगर सॉल्यूशन, शक्कर का जो घोल है उसमें सोक किया जाता है। तो ये आहार्य द्रव्य के बारे में हुआ, पर शरीर में मार्दवम मतलब क्या करना है। मार्दवम से अगर हम रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र लेते हैं, तो दो धातु शरीर में, तीन धातु रादर मैं कहूंगा कि अस्थि का कर्म है देहोर्ध्वता धारण, तो अस्थि में काठिन्य ही होना जरूरी है, और मेद और मांस ये दो धातु है जिनमें मार्दव का संपर्क आपका विशेष आता है।
तो यहाँ पे मधुर रस का स्पेसिफिक करके मार्दव कहाँ पे आने वाला है कि शिथिलता शरीर में आने लगेगी, मेद की स्थिति ऐसी हो रही है कि वो धीरे धीरे बहु और अबद्ध, तो बहु एबंडेंस इन क्वांटिटेटिव डोमिनेंस में डेवलप होना शुरुआत होता है, और महाभूत व्यापार के हिसाब से उसमें मार्दव आने के बाद शैथिल्य आएगा या शैथिल्य नहीं आएगा, ये बाकी मधुर रस किस तरीके से निर्माण हुआ है उसके ऊपर ये चीजें निर्भर करती हैं। तो मार्दव शब्द हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आलस्यम अति स्वप्नम, ये उसके परिणाम है कि स्थौल्य के साथ जो आने वाले हैं, बट मार्दव जो है ये पहले के सब रसादी धातु है उनके ऊपर अभिव्यक्त होने वाली क्रिया है। गौरवम अनन्नाभिलाषम अग्नेर दौर्बल्यम आस्य कंठयोर मांस वृद्धिम। गौरम ये पूरे शरीर में क्लेद या अतिक्लिन्नता आने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होगी उसमें शरीर में भारीपन आना, ये स्थिति हम महसूस वहाँ पे कर सकते हैं। गौरव दोनों चीज़ है कि आप एकदम शादी का खाना मीठा भर के खा लोगे तो वो तुरंत स्वरूप में भी आपको मिलेगा, और क्लिनिकली देखा जाए तो पेशेंट को कई बार आप पूछते हो कि भाई सुबह उठने के बाद आपको भारीपन शरीर में रहता है क्या, यू आर नॉट एबल टू वॉक फॉर सम टाइम, तो ये जो गौरव है कि थोड़ी देर में चलने फिरने के बाद वो फिर सेटल हो जाता है या फिर पेशेंट ठीक रहता है। तो ऐसी अवस्था में शोधन देने के बाद सबसे पहले आपको मिलता है कि ये गौरव या जो लक्षण है ये कम होना शुरुआत होते हैं। आगे देखते हैं हम अग्नेर दौर्बल्यम की अति मात्रा में सेवन करने के बाद गुरु है, स्निग्ध है, शीत है, तो अग्नि का हनन करने वाला है, और निरंतर होता रहा तो फिर उसमें से बाकी संप्राप्ति आगे बढ़ना शुरुआत हो जाएंगी। अग्नेर दौर्बल्यम आस्य कंठयोर मांसाभिवृत्ति। अभी यहाँ पे भी देखा जाए तो आस्य और कंठ ये अगेन ये मांस प्रधान अवयव है, जहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली मांसाभिवृद्धि यहाँ पे दिया है। इसे किसके साथ लिंक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा हम बाद में आएंगे। श्वास कास प्रतिशाय अलसक शीत ज्वर आनाह आस्य माधुर्य वमथु संज्ञा स्वर प्रणाश गलगंड गंडमाला, तो ये चीजें जो है अगर उत्तरोत्तर आप देखोगे तो एक एक स्रोतस का और एक एक धातु का इन्वॉल्वमेंट हमें यहाँ पे आचार्य बताते जा रहे हैं। श्वासकाश प्रतिशय, श्वासकाश है कि अतिरिक्त मात्रा में क्लेद की द्रवाधिक की वृद्धि होने वाली है, तो वही है प्राणव स्रोतस की दृष्टि होने के बाद कफ का जो निर्माण होने वाला है, अगर ये श्लेष्मा स्वरूप में निर्माण होता है कि जो स्त्यान रहने वाला है, तो आने वाला श्वास है ये अलग तरीके से लक्षण दिखाएगा, और ये कफ की तनु स्वरूप में शरीर में वृद्धि होने वाली है तो उसके आने वाले लक्षण जो है ये अलग अलग तरीके से उत्पन्न होने वाले। तो लक्षणों के हिसाब से हेतु का अनुमान करना मुमकिन होता है। आगे हम देखते हैं कि श्वास कास प्रतिशय, प्रतिशय वही है कि कफ की अगर तनु अवस्था रहने वाली है जिसमें शरीर में अत्यधिक द्रव मात्रा में कफ का प्रकोप हुआ है या अतिरिक्त मात्रा में है, तो प्रतिशय पीनस जैसे लक्षण होके ये उत्पन्न होगा। अलसक अग्नि से संबंध है। शीत ज्वर रस धातु में जब आप देखो ये कई बार होता है कि रुग्ण को आप देखते हो कि ज्वर नहीं रहता है, देयर वोंट बी एनी टेम्परेचर ऑन थर्मामीटर, बट हरारत रहती है, या पर्टिकुलरली सायंबली ज्वर आता है कि शाम के टाइम में थोड़ा हल्का सा फीवरिश लगता है, बुखार आएगा, थोड़ा बदन टूटने लगता है, एंड थोड़ी देर बाद पेशेंट इज फाइन। तो ये रसगत जब संप्राप्ति पूरी तरीके से शुरुआत नहीं हुई है, इट इज इन अ ट्रांजिएंट स्टेज की अल्प मात्रा में दोष है पर वो पर्टिकुलर धातु में अभिव्यक्ति आपको दे रहे, ये उसके लक्षण होते हैं। तो इसीलिए शीत ज्वर हम इस तरीके से उसे रिलेट कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली जो मिलता है पेशेंट के बारे में दिखने के लिए उसके रेफरेंस में आपको बता रहा हूँ। आनाह आस्य माधुर्य, आस्य माधुर्य मुंह में हमेशा मीठापन रहना, कि कुछ भी हो तो मीठा स्वाद ही ज्यादा लगता है, तो ये आस्य माधुर्य हो गया। वमथु संज्ञा स्वर प्रणाश। अब स्वर प्रणाश अगर हमने देखा यहाँ पे कि स्वर का संबंध या मेधसार व्यक्ति में हम देखते हैं कि स्वर का संबंध ये वहां पे आता है। तो ऊपर जैसे उन्होंने मार्दव बोला, तो मार्दव में मेद की स्थिति अगर शरीर में विकृत होने वाली है तो उसके संबंध में जहां जहां शिथिलता आने वाली है, जहां जहां वृद्धि संभव है,
तो पहले उन्होंने कंठ और मांसावी वृद्धि वहां पे बोल दिया, तो ये मांस के संबंध में था। मेद के संबंध में स्वर प्रणाश यहाँ पे पहला लक्षण आ गया कि गला बार बार खराब होने लगता है पेशेंट का। तो दिस कैनॉट बी एवरी टाइम रिलेटेड टू कि पेशेंट बोलता है कि सर मुझे बार बार गले का इन्फेक्शन होता है, तो पेशेंट जनरली देखते जाते हैं कि कुछ साइकिल्स उनके एंटीबायोटिक्स के रिपीट होते हैं और उसके बाद में वो आते हैं कि सर 2-4 साइकिल हो गए हैं, अभी एंटीबायोटिक से भी फर्क नहीं पड़ता है, फिजिशियन बोल रहे हैं कि अभी स्टेप अप करते हैं, ऊपर ले जाओ। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे हमें वी हैव टू कट डाउन ऑन सच रेजिम्स ड्रास्टिकली, और बाकी उसका चिकित्सा मतलब हेतु का विचार करने के बाद स्वरनाश है क्या है क्यों है, ये चीजें है संप्राप्ति में हम देख के नियोजन उसका कर सकते हैं। अब गंडमाला, गलगंड और गंडमाला कि इनमें अगर देखा जाए तो दो चीजें ये प्रोमिनेंटली इन्होंने मधुर रस के बारे में यहाँ पे बताई है, तो इनका विचार थोड़ा इलेबोरेटली आगे आएगा। वैसे ही श्लीपद बोला है उन्होंने, गलशोफ बोला है, तो मधुर रस में अगेन यहाँ पे गलशोफ, ऊपर कंठ मांसावी वृद्धि, गलगंड, गंडमाला। सो समवेयर मुझे ऐसे लगता है कि मधुर रस का देयर इज अ पर्टिकुलर एफिनिटी कि किसी धातु का हम कहते हैं कि शरीर में गामिता विशेष रहती है, कि चिकित्सा प्रयोग करते वक्त जब हम अनुपान का विचार करते हैं कि वही अगर अभ्रक भस्म है, वही अभ्रक भस्म मैं अगर मरीज के साथ दे रहा हूं तो उसका टारगेट एक्शन अलग होगा, वही अभ्रक भस्म मैं मिश्री के साथ दे रहा हूं तो उसका रोल अलग रहने वाला है। तो हर द्रव्य की शरीर में किसी धातु के विशेष में गामिता, या उनकी हम उसको कह सकते हैं कि दैट्स अ नेचुरल, गामिता ही उसको कहना ज्यादा उचित रहेगा, गामिता रहती है जहां पे वो परिणाम अपना प्रायशः पहले दिखाते हैं। बीच में शब्द आया था एक श्लीपद, श्लीपद के बारे में भी देखा जाए तो श्लीपद के बारे में प्रायः ये कफजन्य रोग ही इसको लेंगे, बट श्लीपद में कफ की या श्लेष्मा की एक विशिष्ट अवस्था हमें ग्रहण करनी होती है कि कैसे भी कफ वृद्धि हो गई और श्लीपद हो गया ऐसे नहीं होता है। चिकित्सा में उसके रिवर्सल के बारे में भी वैसे ही विचार हमें करना पड़ता है। तो इसीलिए श्लीपद, बस्ती धमनी गलोप लेप उपेक्षाम, तो ये सब अभी तक जो बता है इनके उपेक्षा करने के बाद अभिषंदनाद नित्यनमेव प्रवृत्तिन कफजान विकारान उपजनयन्ति, जो अभी हमने तक देखा ये प्रायः सब कफज विकारों की ही लिस्ट हमें यहाँ पे दी गई है। पर उपेक्षाम ये जो शब्द बोला है कि ये सब की उपेक्षा होने के बाद अभिषंद, ये एक संकल्पना ऐसी है कि अभिषंद ये कहीं पे भी एलोपैथिक साइंस या कोई भी और इसमें आपको नहीं दिखाई पड़ता है। तो लवणः अभिषंदी देखा जाए, सिंपली देखा जाए, समझना है कि जैसे आप नमक खुला छोड़ते हो तो पानी खींच लेता है। तो अभिषंद से मेरा जहां तक परसेप्शन हुआ है कि शरीर में दोषों को धारण करके रखना या एक जगह उनको संचित करके इकट्ठा करके रखना कि जो वहां से मुक्त भी ना हो पाए जब तक उनको अगली गति नहीं मिलती है, तो उसे हम अभिषंद कह सकते हैं। तो मधुर रस से ये पर्टिकुलरली जब निरंतर कफज विकार हो रहे हैं और इनकी विकारों की अभिव्यक्ति नहीं होती है, कि विकारों की अभिव्यक्ति की आलसक हो गया या अग्निमान्य हो गया, वो किसी वैद्य जी को मिलता है, उनकी चिकित्सा होती है, वहां पे खंड हो गया, खत्म हो गया। पर चिरकाल में इस तरीके से जब इनका विचार होता है, इनमें अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो कुछ पर्टिकुलर न्यूरल एलिमेंट्स में या ग्लायोमास वगैरह जहाँ पे फ्रंटल लोब के ट्यूमर्स वगैरह डेवलप होते हैं, इनमें मैंने अभी तक ज्यादातर देखा है कि दुग्ध और कदली मतलब मधुर रस भी है और उसके साथ पे विरुद्धाहार का भी विचार है। तो ये जहाँ पे आते हैं कि पेशेंट का टोबैको अब्यूज कुछ नहीं रहता है, ही डजंट स्मोक, ही डजंट ड्रिंक, बाकी कुछ भी नहीं रहता है, पर खाने में उनके रहता है कि दूध और कदली, फ्रूट सलाड है, मिल्क शेक है, ये चीजें रहती है और ये एक दिन में नहीं मैटर करता है। दिस काउंट्स व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड फॉर ईयर्स टुगेदर, तब उनको समझ में नहीं आता है कि ये किस चीज से हो रहा है। सो नेचुरली द स्पैन ऑफ रिवर्सल विच इज रिक्वायर्ड इज मच लॉन्गर। तो अभिषंद का प्रधान कारण अगर देखा जाए कि अभिषंद से जो भी संप्राप्ति शरीर में वर्तमान होती है या निर्माण होती है, उनके बारे में मधुर रस को हम अच्छे तरीके से एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये प्रायः मधुर रस के हमने देखा। अभी इसके बाद मैं अम्ल को स्किप करके लवण रस की तरफ आ रहा हूँ कि लवणो रसा, ये मैं अभी क्यों दे रहा हूँ कि मधुर रस का प्रोफाइल हमने देखा, जो मैंने
विधान किया था कि मधुर को बाद छोड़ने के बाद सब रस जो है वो क्षपण या क्षरण स्वरूप करने वाले हैं, धातुनाश करने वाले हैं। तो लवणो रसः पाचनः, सबसे पहले डेफिनेशन दे रहे कि पाचनः, ये पाचन करने वाला है। किसी भी स्वरूप में आप उसको भेषज स्वरूप में भी आप करोगे तो वो पाचन करने वाला है। भेषज स्वरूप से मेरा मतलब है नारिकेल लवण है, बल्लातक लवण है, या इस तरीके की जो संकल्पना हम निर्माण करते हैं, तो ये भी कहीं पे पाचन का ही कर्म देती है। और अलग अलग शरीर के अलग अलग स्थान में या धातुओं में हमें ये पाचन कर्म संपादन होता है। क्लेदनो, पाचन बोलने के बाद क्लेदनो, क्लेदनो इति, इसके अंगभूत जो महाभौतिक संगठन है, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये उत्क्लेदन या शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्लीनता उत्पन्न करने वाला है। कल क्लेद का सेशन हुआ है तो क्लेदनों में ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाता हूँ। दीपनः चवनः छेदनो भेदनः तीक्ष्णः, कि इसका स्वरूप कैसा है? दीपन है, छेदन है, भेदन है और तीक्ष्ण है स्वरूप में। यहाँ पे कहीं पे भी सौम्य नहीं है, क्लेदन है पर फिर भी तीक्ष्ण बोला है। तो ऐसी अवस्था में कि मधुर रस में जो श्लेष्मा आपका उत्पन्न हो रहा है, मधुर रस उन्होंने बोला शीत, उसका स्वरूप ही शीत बोला है। तो यहाँ पे तुलनात्मक रीत्या अगर हमें देखना है कि एक चीज हम गर्म पानी में, नमक के पानी में कोई चीज भिगो के रखते हैं और कोई चीज हम शक्कर के पानी में भिगो के रखते हैं, तो गर्म पानी और नमक डाला हुआ है या उसमें क्षार भी मिलाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अलग तरीके से आता है और शक्कर में भिगोई हुई चीज का इम्पैक्ट अलग तरीके से आता है। इसीलिए छेदनः भेदनः तीक्ष्णः, तो भी ये छेदन भेदन कर्म जो है ये कहाँ पे संपादन होगा? छेदन भेदन कर्म आपका संपादन होगा रसादि धातु से शुक्र धातुओं तक जो भी है, यहाँ पे ये हमें कर्म दिखता है। प्रायः मांस में धातु, मांस और मेद धातुओं में हमें लवण रस का कर्म जो है वो संपादन होते हुए दिखता है। भेदन और छेदन के विशेष में बोल रहा हूँ। क्लेदन के संबंध में जहाँ पे वो मात्रावत वृद्धि हमें दे रहा है वहां पे रस रक्त का विचार करना पड़ता है, क्योंकि रक्त धातुओं का अगर हम विचार करेंगे तो रक्त के संबंध में लवण रस है वो रक्त का अभिवर्धन भी करता है। सरो की क्लेदन होने के बाद, भेदन तीक्ष्ण होने के बाद सरो की नेचर है सर, विकास से अधस्रंसाव्य आकाश करो वातहरः स्तंभ बंध संघात, स्तंभ बंध संघात। तो एक एक वर्ड इसमें से हम डिकोड करते हैं कि विकास से अधस्रंसाव्य आकाश करो वातहरः, कि वातहर उन्होंने वहां पे बोला है। विकास करो इति विकसन उसका स्वभाव है। जहां पे भी अगर हम देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन के बारे में थोड़ा विचार करना है तो विकासन कर्म वहां पे हमें संपादन होते हुए दिखता है। सर्वरस वृद्धा स्तंभ बंध संघात विद्यमान, कि अगर देखा जाए जहां पे भी स्तंभ है लवण से आप बाह्यता भी उसको परिषेक करके, लवण जल से परिषेक भी आप दे सकते हो, या लवण पोटली स्वेदन जहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं कि लवण को आप पोटली बना के स्वेदन के लिए दे रहे हो तो उसके बहुत अच्छे हमें बंध, जहाँ संधि बंध में स्तंभ है या डिफॉर्मिटीज होना शुरुआत हुआ है, ग्रह हुआ है, तो वो अच्छे तरीके से वहाँ पे उपशम हमें मिलता है। सर्वरस प्रत्यनीक भूतः आस्यम आश्रावयति, कि मुंह में पानी आना ये उसका स्वभाव है। कफम विष्यन्दयति मार्गान विशोधयति सर्व शरीर अवयवान मृदु करोति, कि जहाँ पे भी मृदु, तो पहले भी मार्दव हमने देखा, पर मार्दव मधुर रस के संबंध वाला मार्दव और यहाँ पे लवण रस के संबंध में जो मार्दव आने वाला है, ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और ये अंतर हमें कहाँ पे दिखाई देता है? जब उसका अतियोग का हम सूत्र आगे देखेंगे तब हमें ये मार्दव शब्द का आगे संबंध मृदु करोति समझ में आएगा। रोचयति आहारम, आहार में नमक नहीं है तो स्वाद नहीं आता, इसलिए रोचयति आहारम, आहार योगी नाट्यर्थम गुरु स्निग्ध उष्णश्च। सो गुरु स्निग्ध उष्ण ये तीनों पे हमें यहाँ पे विचार करना पड़ता है कि ये उसका अंगभूत स्वरूप हुआ कि लवण रस के द्रव्य कैसे होंगे, गुरु स्निग्ध और उष्ण। तो ये उसका प्राइमरी स्वरूप लवण रस के द्रव्य का होगा कि जो देख के हमें फिर कोरिलेट करना होता है। स एवं गुणों अपि एवं अत्यर्थम उपयुज्यमानः,
सबसे पहले क्या होगा कि अतिरिक्त मात्रा में जब लवण, जो मैंने मधुर रस के बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मधुर रस का प्रयोग हम युक्ति प्रमाण से पूरे आहार में रुग्ण के उपशमार्थ व्याधि शमनार्थ कर सकते हैं। वहां पे लवण में आप देखोगे कि जो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको खाने में नमक पड़ा है पर स्वाद लेने के लिए ऊपर से भी हर चीज में इनको नमक ज्यादा लगता है, तो इनमें भी यही चीज होती है कि जो आहार रस आगे निर्माण होता है ये लवण रस से प्रभावित होता है और आगे के जो सब लक्षण है ये हमें वहां पे दिखने लगते हैं। तो इसीलिए पित्तम कोपयति, कि पित्त का कोप करता है, रक्तम वर्धयति, रक्त की वृद्धि है। रक्त का अगर हम पांचभौतिकत्व देखेंगे, विसृता, द्रवता, रागा, स्पंदनम, लघुता तथा, तो उसमें प्रायः रक्तम वर्धयति इति मात्रा से जो उपक्लेदन और विकसन ये दोनों कर्म बताए हैं, तो इनसे रक्त की वृद्धि यहाँ पे ये करने वाला है। अम्ल रस से जो वृद्धि होगी वो अलग तरीके से है, लवण रस से जो होने वाली है वो अलग है। लवण रस से जो रक्त वृद्ध हुआ है ये अधिकतर मात्रा में खुद दुष्ट होके आगे धातुओं की जहां जहां पे वो जाने वाला है वो दुष्टि ज्यादा तरीके से करने वाला है। तर्पयति, मूर्छयति, तापयति, दारयति, कुष्णाति मांसानि, कि जो मैंने पहले बोला कि मांस और मेद ये दो धातुओं पे हमें लवण रस का कर्म अधिकतर संपादन होते हुए दिखता है, जहां पे भेदन और तीक्ष्ण ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। यहाँ पे क्या कहते हैं आचार्य की, मूर्छयति, तापयति, दारयति। कई बार रुग्ण आपको कहते हैं कि सर मैं एक जगह भी बैठा हूं, मुझे पंखा एसी कुछ ना कुछ लगता ही है, नहीं तो हम नहीं बैठ पाते हैं। तो ये तापयति एक आंतरिक स्वरूप से जो ऊष्मा वर्तमान रहती है हमेशा, या ऊष्मा ही कहेंगे, ये प्रैक्टिकली इसी तरीके से लक्षण हमें दिखाई मिलता है। तो उसमें लवण रस का अगर आप विचार करो तो ये लोग काफी बार देखा गया है कि लवण रस का अतियोग या सेवन इनको पसंद रहता है। दारयति इति दारण यानी फटना। सो हियर एक्चुअली जो बॉन्डेजेस या जो धातुओं का, कि श्लेष्मा के बारे में उन्होंने जो कहा कि वो शरीर का संधान करता है, दोनों को साथ में जोड़ के रखता है, तो यहाँ पे दारण ये जो धातुओं का विदारण है, स्थिति है, इनको दूर करना, एक से अलग अलग करना और उनमें वैषम्य उत्पन्न करना या उसमें खवैगुण्य उत्पन्न करना, ये लवण रस से बहुत अच्छी तरीके से संपादन होता है। दारयति हो गया। कुष्णाति, जब ये इसकी एक सुपरलेटिव डिग्री निर्माण हो जाती है तो कुष्णाति इति वहां पे उनको वो गलाना या सड़ाना शुरुआत करता है। कहाँ पे? मांसा में। प्रगालयति कुष्ठानी। अब ये कुष्ठ के बारे में देखा जाए, कुष्ठ में अगर आप लवण रस का नियंत्रण नहीं करेंगे तो उपक्लेदन होने वाला है और फिर जो पैचेस है वो फटने लगते हैं या उन पे क्रैक्स डेवलप होते हैं और वहां से फिर पहले पतला तनुस्राव शुरुआत होता है, जो फिर अवस्था के हिसाब से आगे परिवर्तन, तनु होगा, घन होगा, रक्त आएगा, ये चेंज होता है। पर जहां तक वो विदारण होके स्राव निर्माण की प्रक्रिया है वो लवण रस से हमें वहां पे दिखाई पड़ती है। इसीलिए लवण रस का नियंत्रण कुष्ठ के रुग्ण में हमें सबसे पहले करना पड़ता है। विषम वर्धयति। विषम वर्धयति की विष की बाधा या फिर विष का वेग शरीर में है, ये गर्विष भी हो सकता है और बाकी कोई दूषी विष या अन्य प्राणिज विष है तो उसमें भी विषम वर्धयति, कि वहां पे रक्त की मात्रा जो है वो क्लेदन से बढ़ने वाला है, उष्ण है शरीर में, तो विष को वो फेवर ही करने वाला है। शोफान स्फोटयति, कि शोथ जहां पे, जो मैंने दारण के बारे में अभी आपको बताया कि शोफ में भी दारण होके कई बार स्राव निकलने लगता है, तो शोफान स्फोटयति। दंतांश चावयति। पुंस्तम उपहंति। पुंस्तम उपहंति में कि पुरुषत्व, पुरुष का जो पुरुषत्व है इसमें दोनों चीजें आती है कि एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, कि जिसमें शुक्र धातु का विचार हम करते हैं, और दूसरा विचार है जो आता है कि वो रिलेट्स टू द कॉइटस या मैथुन के संबंध में आता है। तो ये दोनों चीजों पे लवण रस से परिणाम आपको दिखता है। इसका प्रैक्टिकल अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे कि लवण रस में अगर हम जो भी जंक फूड कंजम्पशन एज मेजर आ रहा है, दे आर बिट मोर सॉल्टी देन एक्चुअली हाउ मच दे आर रिक्वायर्ड। क्योंकि ये जो नमक है ना, कि एक खाने के बाद आप रोक नहीं पाते हो, आप दूसरा खाओगे, तो ये लवण रस का रोल है। तो रोचयति जहाँ पे वो कहते हैं कि नमक कम है, कुछ लोग आप देखते हो कि जंक फूड में भी समोसा वगैरह तो नमक ऊपर से अलग से छिड़क देते हैं, बिकॉज वो स्वाद आने के बाद ना वो रुचि उत्पन्न होती है और वो एक ऑल टुगेदर वो थोड़ा अलग फील उसमें डेवलप होता है। सो इसीलिए
पुंस्तम उपहंति में जो जंक फूड सब आ रहा है, इनफर्टिलिटी आजकल जो केसेस इतने बढ़ रहे हैं, प्राइमरी इसमें लवण रस का भी विचार आपको कहीं ना कहीं पे करना चाहिए कि लवण रस का नियंत्रण देना है या लवण रस से जो प्रतिषेध हम जिस तरीके से कर सकते हैं वो चीजों का रोज के आहार में इनकॉर्पोरेशन करना चाहिए। तो पुंस्तम यानी इंद्रियाणी उपरुणद्धि कि इंद्रियाणी उपरुणद्धि, इंद्रियों के जो कर्म है, इंद्रियों के कर्म संपादन होने में कहीं ना कहीं पे बाधा उत्पन्न होना, कि एक पहले उन्होंने इंद्रिय षड इंद्रिय प्रसादन बोला, यहाँ पे इंद्रियाणी उपरुणद्धि बोला है। तो उपरोध उत्पन्न हो रहा है, चिकित्सा उस तरीके से करेंगे तो वो अवरोध जा ही सकता है। वली पलित खालित्यम अपादयति, वली पलित खालित्य सिंपल है कि केशों के संबंध में देखा जाए तो अस्थि धातु के संबंध में जब वो गति या लवण रस का अत्यधिक योग होने के बाद जब वो अभिव्यक्ति उसकी अस्थि धातु और मज्जा धातु तक जा रही है तो उसके बाद में वली पलित और खालित्य आपको वहां पे देखने के लिए मिलता है। तो लवण रस का जब भी कई बार ऐसे होता है कि रुग्ण आपके पास आता है, सर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें अगर आप थोड़ा अंडरलाइन थिंकिंग देके विचार करोगे तो ऐसे रुग्णों में अम्ल पित्त आपको मिलता ही है और लवण रस का अतियोग भी मिलता है। और जहाँ तक देखा है, मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है कि 5-6 साल 8 साल अगर लवण रस का अतियोग है तो कई बार ये जो बाल सफ़ेद हुए इनका रिवर्सल भी थोड़ा मुश्किल होता है। दे डोंट गो, बट इन ट्रांजिएंट फेज में 2-3-4 महीने ही हुए हैं तो रिवर्सल लाइक ग्रेइंग जो है वो रिवर्स होता है, ये देखा है। सो वली पलित खालितम आपादयति अपि च लोहित पित्ताम्ल पित्त विसर्प वात रक्त विचर्चिकेन्द्र लुप्त। तो एक एक कंडीशन लेते हैं। लोहित पित्त इति रक्तपित्त, रक्तपित्त में देखा जाए रक्त और पित्त की एक दूसरे में परस्पर मूर्छना होके दुष्टि होके अभिवर्धन हो रहा है और लवण रस दोनों में ये काम दिखा रहा है, तो उससे रक्तपित्त जैसी स्थिति होना बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अम्लपित्त, यहाँ पे उन्होंने बोला अम्लपित्त भी संप्राप्ति वैसे ही है। विसर्प ये स्पेसिफिक लवण रस के साथ उन्होंने जोड़ा है। संप्राप्ति वही रक्तवात और इन्हीं का संबंध है और मांस के संबंध में आता है। रक्त विचर्चिका में धारण जो होता है कि विचर्चिका की संप्राप्ति के लिए और भी हेतु आपको लगते हैं वहां पे, पर उनमें धारण होके स्राव उत्पन्न होना और लक्षणों की जो प्रोग्रेशन है आगे, इसमें लवण रस आपको प्रायः कंट्रीब्यूट करता है। सो इंद्रलुप्त एक यहाँ पे दिया उन्होंने आखिरी कि विचर्चिके इंद्रलुप्त प्रभृति विकारान उपजयंती, मतलब ऐसे और कई सारे विकार है। प्रायः उन्होंने लवण रस के बारे में इनका विचार यहाँ पे लिया है। तो मुझे लगता है कि मधुर रस और लवण रस अगर हम तुलनात्मक रीति से देखें, इसी तरीके से आप अम्ल रस का भी विचार मधुर रस के अगेंस्ट लिखेंगे या सामने विचार करेंगे तो काफी चीजें आपको उसमें से खिल के उभर आ जाएंगी। मुझे लगता है आज के लिए इतना उचित रहेगा। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।